Okay, dear friends, we have already started part third. In part third, once again, I have to suggest you have to develop an integrated whole. मतलब आपको एकदम समन्वित डेवलप करना है. तो पार्ट थर्ड में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक करने हैं? पार्ट थर्ड में वी हैव टू कवर द फर्स्ट वन टॉपिक, इंडस्ट्रियलाइजेशन, industrial revolution. Then after industrial revolution, then you can say second one topic, that is socialism and Marxism. Then third one, new imperialism. And the fourth one, the First World War. My students, industrial revolution was you have entered into the era of industrial capitalism. Industrial capitalism prepared the way for the exploitation of workers by the capitalist class. जब पूंजीवाद औद्योगिक चरण में पहुंचा तो पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों का, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण शुरू हुआ. तो दैट विल लीड टू सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म? समाजवाद और मार्क्सवाद में क्या अंतर है? आपने मेरे कंटेंट और मेरी स्टडी मटेरियल को पढ़ा होगा, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है. आपको वहां बहुत कुछ, और आज क्लास करने के बाद यू विल बी फुली, you can say you will develop a sense of clarity in what way the changes are taking place, So that is industrial revolution, then socialism and Marxism. Then next one is the new imperialism, and the fourth one is the First World War. And all the subtopics are interlinked to each other. तो अगर अभी मैं उनका लिंकेज आपको करवाऊंगा तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब मैं चारों सब टॉपिक्स को इसमें कवर कर लेंगे तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जो सीधा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लिंक कर देगा. तो इस तरह से हम पार्ट आपको लेते चलेंगे. और एक दिन याद रखिएगा, जब वर्ल्ड हिस्ट्री जब मेरा फिनिश होगा तो आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि हाउ डिड ह्यूमन सोसाइटी इमर्ज फ्रॉम the era of classical age or ancient Greek and Roman civilization till up to contemporary world. मतलब कि ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन से, मिस्टर अंकुर, unusual sound is coming, please inform, and actually the construction work is going on, so you have to give in the advance warning to them कि during this time there would be a strictly the work would be. So all the subtopics are linked to each other, and then socialism and Marxism. In yesterday's class we have discussed this topic. मैंने पिछले क्लास में, यानी कल के क्लास में, समाजवाद और उदारवाद की तुलना करके बताया था. मैंने बताया था कि वही मिडिल क्लास थिंकर्स was the exploitation of workers by capitalists started with industrial revolution. Then there was the rise of the idea of socialism, you can say, and this term socialism for the first time came into use in France in 1830s, France and Britain, and there were some earliest socialist thinkers. अब ये जो आरंभिक समाजवादी चिंतक हैं वो कोई और नहीं है, वो मध्यवर्गीय चिंतक ही हैं. They are the middle class thinkers, They are the middle class thinkers, and the middle class thinkers are promoting the liberal ideas as well, and the same middle class thinkers are promoting the socialist ideas. The early socialists were coming from the middle class itself, but both were having some points of similarity and the points of dissimilarity both. मतलब कि उन दोनों के बीच समानता भी है और असमानता भी है, माने सिमिलरिटी भी है और डिसिमिलरिटी भी है. ये कल मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर है. If you are having any lack of clarity, you can ask me the question. You are most welcome, no problem at all. Mr. Ankur, all are welcome. Yes, sir. And any previous question, I have given some homework to them or not? No, sir. No homework? No, sir. Oh, every day you people have to write one answer and do the written practice. So in end of the class, you people will ask me
अब सपोज आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, सो इन दैट केस यू हैव टू गिव मी द रिमाइंडर कि सर टुडेज क्वेश्चन, टुडेज होमवर्क, सो दैट द होमवर्क वुड बी फिनिश्ड बाय यू टुमारो, and you will appear in the class after doing your homework. I will discuss your homework. At least I will discuss how to start the question. So in this way, up to finishing the world history part, at least in the writing part or the part of the long question, you will develop the enough and sufficient expertise. चूंकि आप अगर डेली एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो जब आपका वर्ल्ड हिस्ट्री जब फिनिश होगा तब तक आप राइटिंग सीख जाओगे. मॉडर्न हिस्ट्री में आपने राइटिंग की है, अब वर्ल्ड हिस्ट्री में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है नहीं कि आई हैव टू, यू कैन से ऑफर यू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. वंस अगेन आई विल जस्ट इन एंशिएंट मेडिवल एंड कल्चर पार्ट आई विल डू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज वेल, बट हियर सिंपली द लॉन्ग क्वेश्चन. तो चलिए अब सोशलिज्म हम लोगों ने कल तो लिबरलिज्म से तुलना करके देख ली. अब हम लोग जैसे एक डायग्राम, आपको ये डायग्राम आपने देखा होगा. Let us discuss about the diagram. First of socialism, collective ownership on the means of production and that of distribution. Okay, once again the same diagram I am going to repeat so that you will be clear. Sir, Yeah. एक दो क्वेश्चन. हाँ, yes. How is the difference between liberal and socialism? My students, about liberalism, difference or similarity? Difference between. अच्छा, actually there are the 2 points of difference between liberalism and socialism. Actually liberalism, that is in Hindi उदारवाद, और socialism समाजवाद, you know. So liberalism basically, liberalism talks about or demanded for a minimal government. A minimal government मतलब उदारवाद का ये मानना है, लिबरलिज्म का करना है कि गवर्नमेंट का पावर लिमिटेड होना चाहिए और गवर्नमेंट को केवल लॉ एंड ऑर्डर तक ही लिमिट होना चाहिए. आप याद करो, मैंने लिबरल आइडियाज इनलाइटेनमेंट से बताया था, याद होगा. लिमिटेड मोनार्की, आर यू रिकॉलिंग? दैट इज द वन फीचर. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ओके, एंड यू कैन से डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी कन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर. But socialism believes कि no, law and order is not sufficient. The government should work for the welfare of the workers, for the protection of the workers, and the government had to play the active role in promoting the interest of the working class people who are subjected to unbridled exploitation by industrial capitalism. उनका यह कहना है कि सरकार को जो मजदूर वर्ग है उनकी सुरक्षा के लिए भी काम करना चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए. तो वो मानता है कि स्टेट को वेलफेयर स्टेट होना चाहिए. तो उसका मानना है मैक्सिमल गवर्नमेंट. लिबरलिज्म मिनिमल गवर्नमेंट, सोशलिज्म मैक्सिमल गवर्नमेंट. वन पॉइंट. सेकेंड वन पॉइंट इज कि बोथ आर हैविंग द सेम सोशल बेसिस, द मिडिल क्लास प्रिपेयर्ड बेसिस फॉर socialism and the liberalism and early socialism both. But liberalism was talking in terms of the interest of the capitalist class, but socialism talked in terms of the interest of the working class. तो दोनों का ऑब्जेक्टिव में भी फर्क है. एक बोलता है कि कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो दूसरा कहता है वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. मिस्टर अंकुर, Yes. should I go further? Yes, sir. Okay. अब देखिए, अब सोशलिज्म. If someone is going to ask you in one sentence कि what is socialism, तो you can reply a simple way कि socialism is an ideology which talks in terms of the collective ownership on the means of production and that of distribution. Means कि socialism emphasizes over the collective ownership on the means of production and that of distribution. So this is a common definition. Collective ownership on the means of production and that of डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब कहते हैं उत्पादन और वितरण
के साधन पर व्यक्ति का नियंत्रण ना होकर सामूहिक नियंत्रण हो, समुदाय का नियंत्रण हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज सोशलिज्म. बट द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि व्हाट शुड बी द मेथड फॉर कैरिंग द इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन or for maintaining the collective ownership. What should be the means? On the means you will find a difference. One means is the method of class collaboration. Class collaboration. A group of thinkers appeared who believes in class collaboration. The theory of, you can say, class collaboration and the method of class collaboration, they were early socialists and for that the specific, you can say, moniker or a specific nomenclature is being used, that is called utopian socialist. Utopian socialist. अब what is class collaboration? You people know. Class collaboration means in Hindi वर्ग समन्वय. Means कि the main problem is कि there is the economic disparity in society. And the objective of socialism is to bring the private property under the collective control and to do the economic redistribution among the people. But the main question is ki how this economic redistribution had to be pursued. What should be the way? What should be the method? So a group of thinkers believe that ki simply through arousing a sentiment or arousing a sense of compassion in the heart of the richer section of society or in the heart of the rich persons, the capitalists, and you have to create a sense of compassion in them. Those people who are just facing their poor lot, they are none else, they are your own brethren. You have to do for their betterment. मतलब कि आप कैपिटलिस्ट को, पूंजीपतियों को समझाओगे कि भाई वो आप ही के भाई बिरादर हैं, वो कष्ट में हैं, वो पीड़ा में हैं, आप उनके लिए अपने आपके प्रॉपर्टी को थोड़ा त्याग करिए, उनको भी दीजिए. सो देयर शुड बी द इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन. आपको उनके बेटरमेंट के लिए अपना हक छोड़ना चाहिए. तो ये कितना बढ़िया मेथड है. कोई कंफ्लिक्ट नहीं, प्यार और मोहब्बत से इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. बट इज इट पॉसिबल? No. It is, you can say, pleasing to the ear. It appears to be exciting. It is motivating, enticing, but not realistic. क्योंकि कोई कैपिटलिस्ट अपना इंटरेस्ट नहीं छोड़ेगा, स्वेच्छा से नहीं छोड़ेगा. Means कि at their sweet will, the capitalist class will never discard its own selfish interest. तो इनको यूटोपियन कहा गया. अब यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूटोपियन. हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि इन 16th century there was a European author, and this European author, his name was Sir Thomas More. In 16th century, Sir Thomas More, and he composed a text. The name of the text was Utopia. So in this text, Utopia, he drew a picture of such an ideal society in which there is, you can see, this society was an egalitarian society, and the people in society were living in a state of complete harmony and brotherhood. But this was definitely pleasing to the eyes, this was pleasing to the ear, and this appears to be exciting, a wishful thinking, but this is not the reality. So utopia means excessive idealistic. Excessive idealistic means in the real life condition we cannot manifest such a situation. मतलब कि इसको हम यूटोपिया कहते हैं. जो यूटोपिया शब्द आपको लगता है वो काफी इंटाइसिंग लगता है,
काफी अट्रैक्टिव लगता है, काफी प्लीजिंग लगता है, लेकिन यूटोपिया रियलिटी नहीं लगती, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन में हम कभी भी ऐसा मैनिफेस्ट नहीं कर सकते कि इतना आइडियलिस्टिक सिचुएशन रहा हो। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज सिंपली अ विशफुल थिंकिंग। तो उस समय से एक्सेसिव आइडियलिस्टिक का मतलब हुआ, एक टर्म होता है रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब हुआ कि जो संभव होता है, जो देखा जा सकता है रियल लाइफ में। और आइडियलिस्टिक का मतलब है कि देखो, एक विशफुल थिंकिंग तो है, हम ऐसा चाहते अवश्य हैं लेकिन होता नहीं। तो इधर यूटोपियन मीन्स की आइडियलिस्टिक, it is not a real life situation. So these thinkers were the idealistic thinkers. They simply express their wishful thinking but not the reality. And here you will find certain name, and the name is, you can say, Saint Simon. Saint Simon, Charles Fourier, Louis Blanc, Saint Simon, Charles Fourier and Louis Blanc, these were the certain thinkers, you know. These were the thinkers. And these were idealistic thinkers, you know. Then comes another turn. And this turn is, you know, the method of class conflict. No, sorry, Louis Blanc, sorry. Robert Owen. Not Robert Owen. The method of class conflict. Of the method of class conflict, even in this group you can divide it in two subgroups. मतलब एक दूसरा ग्रुप है जो वर्ग समन्वय में विश्वास नहीं करता है, वो वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है। जैसे पहला ग्रुप है वो यूटोपियन थिंकर कहते हो। यूटोपिया शब्द आया है, एक नॉवेल का नाम था, एक रचना का नाम था जो सर थॉमस मूर ने लिखा था, वो ब्रिटिश चिंतक था 16वीं सेंचुरी का। तो उसने एक ऐसे आदर्श समाज की परिकल्पना की थी, ऐसे आइडियल सोसाइटी का जो रियल लाइफ में नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो रियल लाइफ में नहीं है उसको मान लिया गया अत्यधिक आदर्शवादी, और यूटोपिया में एक ऐसे आदर्श समाज की परिकल्पना की गई जो नहीं है रियल लाइफ में। तो इसीलिए उसी रचना, उसी क्रिएशन, उसी कंपोजिशन के नाम पर कोई भी ऐसी चीज जो व्यवहार में हम नहीं देखते उसको यूटोपियन नाम दे दिया गया। तो ये थिंकर्स हैं, वो बात तो बहुत अच्छी बोलते हैं परंतु उनके विचार व्यवहारिक नहीं है। उसमें सेंट साइमन है, चार्ल्स फोरियर है, रॉबर्ट ओवन है। उन तीनों की चर्चा आपको मेरे मैटर में मिलेगा और हम करेंगे। द सेकेंड वन ग्रुप है दैट बिलीव्स इन द मेथड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इनका कहना है कि हम वर्ग संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। You can divide them into two subgroups. One is कि through blood revolution. Through blood revolution. अब that is Karl Marx. And this Karl Marx, that is known as scientific socialism. Karl Marx, that is known as scientific socialism. Scientific socialism. अब here you can say you will find the term communism that became almost synonym for this Marxism. Why? So I'll just mention this point. Actually, Karl Marx believed in blood revolution. He just made an appeal to the working class people. The workers of the world unite. You are nothing to lose except the chains of sorrow, and you are having the whole world to gain. And then
according to him कि actually working class should develop a sense of class consciousness and they should organize a revolution, and taking a hammer into their hand they had to make attack on the system, and through blood revolution they had to break the whole system and capture the power. So Karl Marx has just suggested the control of the power to the workers, suggested workers to control the powers by dint of force, by dint of blood revolution. So it is his brand of socialism is supposed to be, his brand of socialism is supposed to be, you know, the scientific socialism, that is called scientific socialism. तो एक तो मार्क्सिज्म हुआ जो रक्तपूर्ण क्रांति की बात करता है, वो मजदूरों को सुझाव देता है कि आप लोग एकत्रित होइए, आपस में एक क्लास कॉन्शियसनेस, वर्गीय चेतना लाइए और बलपूर्वक आप सत्ता पर कब्जा कर लीजिए। तो ये तो मार्क्स का मेथड है। लेकिन ये क्लास कन्फ्लिक्ट वाले में एक दूसरा सब ग्रुप भी है। ये दूसरा सब ग्रुप बोलता है थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, through democratic means, मतलब it believes that yes, we don't believe in the dictum it ki through class collaboration that is possible. It believes in the method of class conflict, through class collaboration that is not possible. We are supposed to fight, and we are supposed to carry the economic redistribution through the forceful means. But the forceful means is not the violent method as has been suggested by Marx, but it is through parliamentarian politics, through democratic politics, through making laws. We have to capture the extra wealth from the, you can say, the ultra rich people, and we have to distribute the same wealth among the poor. तो इनका मेथड यह है कि देखिए, है तो मतलब प्यार मोहब्बत से तो लोग अपना हक नहीं छोड़ेंगे, हमें तो जबरन उनसे लेना पड़ेगा। वो जबरन का मतलब हमें मतलब ब्लड रेवोल्यूशन या रक्तपात या हिंसा नहीं है, वायलेंस नहीं है, बल्कि हम पार्लियामेंट के थ्रू, हम डेमोक्रेटिक मेथड के थ्रू लॉज बनाकर, कानून बनाकर उनसे एक्स्ट्रा वेल्थ छीनेंगे। तो ये इनका दोनों का मेथड अलग अलग है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू वगैरह ये है, और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखोगे तो फेबियनिज्म ये है, फेबियनिज्म, that is in Britain, democratic socialism, that is called Fabianism. That Jawaharlal Nehru was impressed by the same Fabianism. Then you can say, or there you can use Oxford, एक Oxford group है, वो भी democratic means के थ्रू वर्ग कन्फ्लिक्ट की बात करता है। यहाँ तो खैर मार्क्सिज्म में a lot of thinkers that follow the method of Marx, you know. अब you will find a difference, slight difference between the term Marxism and communism. So actually, whenever I will teach you about the Marxian revolution, I will inform you that Karl Marx has conceived the three different stages of the revolution. The first stage he named as the stage of direct action, when the working class had to develop a collaboration among themselves, they had to develop a class consciousness, and then they had to attack on the system. So that is the first stage, and capture the power. So the first stage would be over. Then comes the second stage. In second stage, the same working class, that is called proletariat, working class he prefers to call proletariat. So using the same state machinery which had once been used by bourgeoisie class against the working class for exploitation, so using the same state machinery, this working class or proletariat class had to uproot the bourgeoisie class completely. So how to uproot the bourgeoisie class? The simple method is you have to destroy the private property. The bourgeoisie class had to be converted into the proletariat class. The bourgeoisie class minus private property is equal to proletariat class. So in this way, just destroy the bourgeoisie class, and then at the same time you have to export the revolution in the nearby countries, so that everywhere there should be the direct action and dictatorship of proletariat. So in obviously, you can say, suppose in India, it has been carried on, so India will export the revolution in Pakistan, in Afghanistan, in Russia, in different countries. So in different countries, there also direct action had to take place, and there would be the dictatorship of proletariat. So in this way, in the whole world, there would be the single, you can say, the single state,
and that is the state of proletariat class, and the single class, that is proletariat, because bourgeoisie and all other classes had to be destroyed. So अब there is the single one class, the proletariat class, and there is the single one state, that is the proletariat state. So better let the state wither away, dismantle the state. So in the whole world there would be the single class, that is the proletariat class, and the single world, that is the proletariat world. So he used the term classless and stateless society for that. Use the term classless and stateless society. Here I have to inform you, that is called classless and stateless society. तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने उसके लिए एक टर्म का यूज किया, वो है क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी. तो जो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी का स्टेज है, उसी को कार्ल मार्क्स प्रेफर्स टू कॉल कम्युनिज्म. अब हिंदी में बोल देता हूं. देखो, कार्ल मार्क्स में आगे जहां पर मैंने आपको थियरीज बताई है, उसके लास्ट में बताई है 3 स्टेज रेवोल्यूशन का. पहला स्टेज में कार्ल मार्क्स बोलता है कि जो वर्किंग क्लास है, जो प्रोलेटेरिएट उसको बोलता है सर्वहारा हिंदी में, उसमें एक वर्गीय चेतना आएगी, क्लास कॉन्शियसनेस आएगा. फिर वो सिस्टम पर हमला करेगा और पावर को कैप्चर करेगा. तो फर्स्ट स्टेज पूरा हो जाएगा. दूसरा स्टेज में वो क्या करेगा? दूसरा स्टेज में वो बुर्जुआजी क्लास है उसको डिसमेंटल कर देगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करेगा और स्टेट को बचा कर रखेगा. क्योंकि वही स्टेट के सहारे कहीं बुर्जुआजी ने उनको एक्सप्लॉइट किया है, अब उसी स्टेट मशीनरी का सहारा लेकर वह अब बुर्जुआजी को अपरूट करेंगे. एंड यू कैन से द बुर्जुआजी क्लास वुड बी कंप्लीटली डिसमेंटल्ड. तो जब बुर्जुआजी क्लास जब डिसमेंटल्ड होगा, मतलब सॉरी, बुर्जुआजी क्लास जब अपरूटेड होगा, तो एक ही क्लास बच जाएगा प्रोलेटेरिएट सेकेंड स्टेज में. एंड दूसरी बात क्या होगा कि उस समय उस स्टेट को चाहिए कि मतलब उस रीजन जहां प्रोलेटेरिएट गवर्नमेंट है, तो प्रोलेटेरिएट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट अदर रीजन्स में करे, क्योंकि हर जगह एक प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन हो जाए और वहां भी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आ जाए. तो इस तरह से अगर इंडिया से वो रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान करेगा, अफगानिस्तान करेगा, रशिया करेगा, तो चारों तरफ रेवोल्यूशन हो जाएगा. तो अब पूरी वर्ल्ड में ही प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन हो जाएगा. और एक ही, ये व्यवहारिक नहीं है, एक मार्क्स का यूटोपिया था, एक कभी नहीं हुआ थर्ड स्टेज. तो थर्ड स्टेज तक आकर पूरी दुनिया में प्रोलेटेरिएट क्लास ही बच जाएगा और एक ही स्टेट बच जाएगा, प्रोलेटेरिएट स्टेट. तो अब स्टेट की आवश्यकता ही नहीं है. कार्ल मार्क्स ने कहा था स्टेट इज ए नेसेसरी एविल. नेसेसरी एविल का मतलब है कि एक आवश्यक बुराई है. अब तुमको स्टेट का काम हो गया, अब तुम स्टेट को डिसमेंटल कर दो, हटा दो. अब पूरी दुनिया में एक ही स्टेट होगा और एक ही क्लास होगा, वो होगा सर्वहारा क्लास. तो उसको उसने कहा ये क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी होगी, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज हो जाएगा पूरी दुनिया में. उसी के लिए उसने कम्युनिज्म शब्द का प्रयोग किया. तो दिस कम्युनिज्म नेवर अपीयर्ड बिकॉज द मार्क्सियन रेवोल्यूशन कुड नेवर रीच अप टू द थर्ड स्टेज, इट रिमेन अप टू द सेकेंड स्टेज इटसेल्फ. तो कम्युनिज्म का स्टेज जो कार्ल मार्क्स ने ओरिजिनली सोचा था वो तो आया ही नहीं. तो आगे चलकर क्या हुआ कि मार्क्सिज्म के सिनोनिम के रूप में कम्युनिज्म शब्द का प्रयोग शुरू हो गया. फॉर ए मार्क्सिस्ट सिस्टम यू स्टार्टेड टू यूज कम्युनिस्ट सिस्टम. तो this is the differentiation among the three. And make me clear कि have you people been clear about this socialism and ये अलग अलग सोशलिज्म के स्कूल्स में क्या फर्क है. एक क्लास कोलैबोरेशन है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है. क्लास कॉन्फ्लिक्ट में भी 2 ग्रुप्स है. सो आई हैव टू क्लैरिफाई इट. सर कुछ बच्चे बुर्जुआ क्लास पूछ रहे हैं. बुर्जुआजी कहते हैं पूंजीपति को. कार्ल मार्क्स ने, मेरे मैटर में कल भी तो मैंने आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स ने 2 टर्म का यूज किया. एक है बुर्जुओजी. बुर्जुओजी क्लास सब टर्म का यूज किया है कैपिटलिस्ट क्लास के लिए, और प्रोलेटेरिएट क्लास का यूज किया है मतलब वर्किंग क्लास के लिए. तो ये बुर्जुओजी है, प्रोलेटेरिएट है. पवित्रा पूछ रही है, was Karl Marx inspired from Jacobean model? To certain extent, Karl Marx was slightly inspired by Jacobean model as well. You are correct. Bhavna question, why it is called scientific socialism? Actually, Karl Marx, the socialism of Karl Marx is supposed to be realistic, Bhavna. So, due to its nature being more realistic than other brands of socialism, so that's why it started to be characterized as scientific socialism.
So I think you people are all my students clear? Mr. Ankur, any confusion? Please give me the hint. So Gauri question is first two stages were socialism. Yes, that is the Marxism stage, that is socialism. All the three is socialism. Even communism is the part of socialism. That is a sub stage within socialism. मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तुम कहना कि वही फर्क है जो एक इंडियन और एक पंजाबी में है, एक इंडियन और बंगाली में है, एक इंडियन और बिहारी में है, एक इंडियन और यूपीआईट में है। मतलब सोशलिज्म एक लार्जर कंटेक्स्ट है और कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म उसका पार्ट है। और कम्युनिज्म मार्क्सिज्म का ही एक स्टेज है जो थर्ड स्टेज, जिसको क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी का स्टेज कहते हो। क्लियर है सभी का? ओके। अब नाउ अब अर्ली सोशलिस्ट, अर्ली सोशलिस्ट में यू हैव टू रिकॉल सिंपली थ्री नेम्स। two is the French scholars and one is the British, Saint Simon, Charles Fourier, and third one Robert Owen. My student Saint Simon, he was a French thinker. In Paris, he even organized, he just founded an organization. Its name was the League of Just. Saint Simon believes, because all the three thinkers believes in the theory of class collaboration. So that's why they were characterized as the utopian socialist, So they believed in class collaboration, and according to Saint Simon, actually the nature is having the abundant resources. Why you are fighting with each other in order to corner out the resources for yourself? Because nature is having the abundant resources, so you have not to carry a conflict among yourself for cornering out the larger chunk. Better all had to exploit the natural resources collectively, and then requirement of everybody had to be fulfilled. उसका कहना है कि आपस में क्यों झगड़े कर रहे हो? प्रकृति के पास अपार संसाधन है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है। अगर सभी मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करोगे, एक्सप्लॉयटेशन करोगे, तो सभी की जरूरतें पूरी होगी। तो उसने एक नारा दिया कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। तो मतलब प्रत्येक को, मतलब उसने क्षमता के अनुसार से, प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो ये नारा दिया, उसने कहा कि सभी लोगों को मिलजुल कर प्यार से प्रकृति का दोहन करना चाहिए। एंड ही प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, बट ही बिलीव्स दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल, प्रोवाइडेड ऑल हैव टू मेक अ कोलैबोरेशन एंड दे हैव टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज विद द कलेक्टिव एनर्जी। तो वो मानकर चलता है कि सभी की आवश्यकता पूरी होगी। लेकिन अब तो आज की तारीख में अगर आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम देखते हो, इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस आया है दुनिया में, तब पता चलेगा कि भाई ये समाजवादी जो सोशलिस्ट थे, उनकी जो प्रोफेसी थी, उनकी भविष्यवाणी थी, वो कितनी गलत थी। क्योंकि प्रकृति के पास बहुत सारा रिसोर्सेस नहीं है। आगे गांधी जी ने क्या कहा कि प्रकृति के पास हमारी आवश्यकता के लिए बहुत कुछ है, परंतु हमारे लालच के लिए कुछ नहीं। बट नाइदर सेंट साइमन नॉर कार्ल मार्क्स at that time came to understand that the nature is having its own limitation, and even the resources are not infinite, resources are finite. So they didn't believe in this dictum earlier, but later the nature had proved it कि no, nature has given a red signal कि now we are not allowed to exploit me anymore. तो ये बात उस समय नहीं थी, तो सेंट साइमन ने कहा। अब चार्ल्स फॉरियर, इवन ही वाज ए फ्रेंच थिंकर, बट ही बिलीव्स दैट कि नो, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। जो औद्योगिक समाज है वो शोषक है। सो एवरीबडी हैड टू लिव आउटसाइड ऑफ अ टाउन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एंड in order to protect themselves from exploitation,
the people should live in countryside and they had to get associated with agriculture and they had to do the collective farming. He invented a term phalanx, means ki there should be a group of 1600 peasants or 1600 peasants or agriculturists, and they had to do the collective farming on the land equivalent to nearly 5000 acres. मतलब उसका कहना था कि देखिए, आप अगर इस शोषण से बचना चाहते हैं तो आप नगरों से निकलिए, गांव में चले जाइए, गांव में रहिए और सब मिलजुल के फार्मिंग करिए। 1600 पेजेंट्स का एक फलांस होगा जो 5000 एकर्स ऑफ लैंड को कल्टीवेट करेगा। तो इसका ये व्यवहारिक नहीं है। रॉबर्ट ओवन थोड़ा सा ज्यादा व्यवहारिक है, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ, व्यवहारिक तो ये भी नहीं है, ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, यू नो। So he was basically a British industrialist and he was running an industry at Scotland. So in Scotland, he did a new type of experiment. He enhanced the salary and other sorts of facilities to workers, and that produced a miraculous impact and miraculous result, you know. But Robert Owen was surprised to observe that after fulfilling the need of the workers and enhancing the salary and other facilities to workers, in fact, there was the larger enhancement in production. Means that the workers, you can say, very enthusiastically do the production. So finally you can say that there was the larger and there was the multifold production. So Robert Owen came to realize that the satisfied worker is the true worker. मतलब रॉबर्ट ओवन ने एक नए प्रकार का प्रयोग किया स्कॉटलैंड में। उसने मजदूरों की सुविधाएं, उनके तनख्वाह और सारी सुविधाएं बढ़ा दी और देखा इससे जो मुनाफा है, प्रॉफिट कम नहीं हुआ बल्कि प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ही केम टू रियलाइज दैट कि अगर हम वर्कर्स को सेटिस्फाई करेंगे तो वो अपने प्रोडक्शन, उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। तो इस तरह से उसका एक प्रयोग किया और लेटर हिज आइडियाज इवन इनकरेज द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन ब्रिटेन, यू नो। But these are these thinkers, you can say. So these thinkers were supposed to be the, you can say, idealistic thinkers, you know, or you can say that is utopian thinkers, because they believe in the theory of class collaboration. Other than that, you might have heard about Louis Blanc. You cannot count Louis Blanc among you can say utopian thinkers, because Louis Blanc was a bit pragmatic. Suppose we have divided the, you can say, socialist thinkers in 3 groups. So you can ask me the question ki where we can place Louis Blanc, in which category? So definitely not in the category of Karl Marx, but at least in category of the through democratic means, class conflict through democratic means. So in the 3rd category we can place Louis Blanc. While you can say Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, they could have been placed in the 1st category, that is called utopian thinkers. But Louis Blanc not among utopian thinkers, but in the 3rd category, you can say, that is class conflict through democratic means. So Louis Blanc, in one sense, you can say he was a French thinker, and he believed that before economic reforms, the political reforms are the essential corollary. Without political reforms, you cannot carry the economic reforms. Means he came to believe that so far as the working class is not attaining the power, if they are not having the power and they are not having the role in the government, their economic need and their economic exploitation could not be prevented. So he believes that workers had to take the power, not through bloody revolution like Karl Marx, but through democratic means. The workers would try to take the power into the hand, and there should be a government which should have sympathized with the workers, and there should be the formation of you can say a social organization, or you can say there should be the formation of an organization by the government, and this organization had to provide the basic facilities to workers. Basic facilities, the workers should be given the, you know, basic instruments for work. They should be provided the initial capital, and the workers should be encouraged to do the production independently without any exploitation. तो उसका अपना एक अलग नजरिया था। उसने कहा कि देखिए, लुइस ब्लांक ने कहा
कि जो वर्किंग क्लास है उसको पहले इकोनॉमिक पावर को अटेन करने से पहले पॉलिटिकल पावर को अटेन करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होगी तब तक उसको जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उनको महत्व नहीं देंगे। और अगर वो कुछ अपने लिए भी करना चाहता है तो पॉलिटिकल पावर उसको चाहिए होगा। लेकिन अब कार्ल मार्क्स की तरह वो ऐसा नहीं कहता है कि आप बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा करिए। उसका कहना था कि थ्रू आप डेमोक्रेटिक मेथड से थ्रू चुनाव लड़के या जैसे भी हो आप गवर्नमेंट में आइए, गवर्नमेंट की पॉलिसी को अफेक्ट करिए। तो फिर उसने कल्पना की एक सामाजिक, मतलब उसको कहते हैं, उसने राजकीय शिल्पशाला एक बनना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जो वर्कर्स को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, उनको बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स दे और उनको एक बेसिक कैपिटल दे ताकि वो इंडिपेंडेंटली प्रोडक्शन करें। और इंडिपेंडेंटली प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी में होंगे तभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास बार्गेनिंग पोजीशन होगा किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के अंतर्गत। तभी वो काम करेंगे जब उनको उतनी फैसिलिटीज मिलेगी, नहीं तो प्राइवेट काम करेंगे। तो उसका जो लुइस ब्लांका थोड़ा उसका प्रैग्मेटिक है। तो 1830s में लुइस ब्लांका विचार फ्रांस में फैलना शुरू हुआ। और इन 1848 में जो इलेक्शंस हुआ, तो इन द इलेक्शंस ऑफ 1848 यू कैन से लुइस ब्लांक वाज इंडक्टेड एज द मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट इन द रिपब्लिक इन 1848। आर यू रिकॉलिंग? इन फ्रांस देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ अ रिपब्लिक। So this in Republican government you can say Louis Blanc was inducted as a minister. But do you know कि in the same republic when the presidential election took place, in the presidential election you can say कि Bonapartist won the election and it was Louis Napoleon III who became the president. Are we recalling? And same Louis Napoleon III just captured the power 4 years after in 1852. So basically who strengthened the hand of Louis Napoleon III, do you know? Basically, it was the capitalist class of France, because at that time the idea of the socialist ideas were having the fast pace in France, and socialist ideas started to influence the objective and the functioning of the French government, and the thinkers like Louis Blanc was having their imprint on the government, so it terrified the capitalist class in France, and it was the capitalist class in France which strengthened the hand of Louis Napoleon III कि better to convert this republic into a monarchy and crush the socialist movement, and Louis Napoleon III did in the same manner. So मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यही लुइस ब्लांक था जो 1848 में जो रिपब्लिक फ्रांस में बना था, उसमें वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर भी गया, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक मिनिस्टर के पद पर गया था, और बहुत सारे उसने सोशलिस्ट रिफॉर्म शुरू किए थे। लेकिन उसे जो फ्रांस के कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीपति थे, वो डर गए थे और उन्होंने जानबूझकर लुइस नेपोलियन III जो प्रेसिडेंट बना था 1848 में, जो पीछे बता चुका हूं, वही लुइस नेपोलियन III, सेडान का बैटल आपको याद होगा, तो उसका हाथ मजबूत किया। और आपको याद है लुइस नेपोलियन III ने अपने चाचा की तरह, जस्ट लाइक अपने वर्दी अंकल, ही कैप्चर्ड द पावर। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। तो ये क्यों लुइस नेपोलियन III ने किया, उसको किसने सपोर्ट किया? तो फ्रेंच कैपिटलिस्ट क्लास ने सपोर्ट किया, जो सोशलिस्ट आइडियाज के स्प्रेड से बड़े डरे हुए थे। आई थिंक यू पीपल आर क्लियर। सो दैट इज द early socialist. Mr. Ankur just ask my students because now I have to move to Karl Marx. नहीं, फर्स्ट नहीं, हाँ, लिमिटेशंस के बारे में थोड़ा लिमिटेशंस बता दो। ये जो थिंकर्स हैं, सोशलिस्ट, अर्ली सोशलिस्ट या यूटोपियन थिंकर्स, ये बेसिकली बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, प्यार मोहब्बत से चेंज होगा। प्यार मोहब्बत से कहाँ चेंज हुआ है? एंड बेसिकली दे आर द मिडिल क्लास थिंकर्स, एंड जस्ट लाइक द इनलाइटेंड थिंकर्स, दे बिलीव्ड in the basic goodness of man and perfectibility of the world. मतलब they believe that कि naturally the capitalist class would discard their selfish interest, which was not in real life situation possible. मतलब इनको बेसिकली ये इनलाइटेंड या प्रबोधन काल के चिंतक की तरह ऐसा मानकर चलते हैं कि मानव मूलतः अच्छा है, मतलब स्वभाव से मानव अच्छा होता है। देखो, दो तरह के थिंकर्स है, आप मेंटली अलर्ट हो ना। एक तरह का थिंकर्स मानता है कि मैन इज बाय नेचर गुड, तो जो मानता है कि बाय नेचर मैन इज गुड, उसको हमेशा विश्वास रहता है कि एक न एक दिन उसका हृदय परिवर्तन होगा। अ टाइम विल कम कि ही विल मैनिफेस्ट अ चेंज ऑफ हार्ट,
and he will do good for the betterment of society. ये विश्वास गांधी जी को था, ये विश्वास यूटोपियन, गांधी जी भी तो यूटोपियन थिंकर्स में ही थे, यूटोपियन सोशलिस्ट, लियो टॉल्स्टॉय को है, जॉन रस्किन को है, तो दुनिया में। और अगर आपने प्रेमचंद का कोई नॉवेल पढ़ा होगा, हालांकि आप इंग्लिश मीडियम वाले तो हिंदी नॉवेल प्रेमचंद का शायद पढ़ा हो या ना, आई डोंट नो, प्रेमचंद का कोई नॉवेल पढ़ोगे गोदान से पहले, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ गोदान, आप कोई भी उनका वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कोई भी नॉवेल प्रेमचंद का पढ़ो अदर देन गोदान, यू विल फाइंड देयर कि इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल देयर वाज you can say a cruel jamindar, but through change of heart up to the end, he became humanistic in his approach and he discarded all his wealth for the betterment of society, for the betterment of peasants, तो आप देखोगे कि वो जमींदार, जो जुल्मी जमींदार था, उसने अपनी सारी संपत्ति किसानों के लिए कुर्बान कर दिया। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो थिंकर्स थे, ये थिंकर्स का वीकनेस ये हुआ कि दे कुड नॉट गिव अ सॉल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग, यू कैन से existing exploitative nature of industrial society. So finally there is the rise of Karl Marx. Actually they are having one positive contribution. These thinkers were having the positive contribution because these thinkers were the first or earliest socialist thinkers who raised the issue of exploitation of workers by capitalists. They for the first time raised the issue of the relationship between the capital and the labor. So that is the positive impact, and that inspired Karl Marx also. But they were having a limitation, and the major limitation was that they didn't bring the realistic solution to the exploitative nature of industrial society. So that was their limitation. तो ये दोनों चीज इनमें है, और इस तरह से आप इसको देखते हो। अब हम कार्ल मार्क्स पर आते हैं। या पहले इसकी आइडियोलॉजी की तरफ चले। अच्छा हाँ, मैंने आपसे पूछा नहीं, सॉरी, आर यू क्लियर or any confusion so far? Mr. Ankur asked my students. So Gaurav question, sir, was any impact of socialism in 1848 revolution? Yes, there was one group, the middle class thinkers, say Louis Blanc, etc. So some socialist thinkers were also active at the time of the revolution of 1848. There was some impact. Gaurav. Alam question, sir, what difference ideology of Karl Marx and Adam Smith for social economic? Yeah. आलम पूछ रहे हैं सर, what difference ideology of Karl Marx and Adam Smith for social economic? I will deal with who? Alam. Alam, have patience. I am going to deal with Karl Marx. There I will deal with also with the phenomena that in what way Marxism was different from this Adam Smith. Actually, the Marxist economic theory is based on the criticism of classical economics, So in one sense, Karl Marx ended there, and then Adam Smith ended from the point, and the Karl Marx, the whole economic theory of Karl Marx is the criticism of Adam Smith. आलम मतलब जो कार्ल मार्क्स की जो पूरी आर्थिक व्याख्या है, जो इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म है, वो पूरा एडम स्मिथ का ही तो इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म किया है। उसका पूरा थियरी जो मैं मार्क्स का समझाऊंगा तो खुद क्लियर हो जाएगा आपको। अब हियर यू कैन से अबाउट द कार्ल मार्क्स, हियर आई हैव गिवन यू द फैमिली some introductory, you can say, information about Karl Marx. Yes, Mr. Ankur. हर्षिता पूछ रहे हैं यूटोपियन थिंकर्स की डेफिनेशन क्या हो? Idealistic, Harshita, idealistic thinkers, those thinkers whose ideas are not practical. मनोज पूछ रहे हैं डिड यूटोपियन आइडियोलॉजी सिमिलर टू राम राज्य थ्योरी ऑफ गांधी जी? Yes, even Gandhi ji, who? मनोज, Manoj, even Gandhi ji was a utopian thinker.
to certain extent, you know. So some ideas of Gandhiji are also utopian. Yes, sir. बाकी As an extreme form of socialism, Marxism put a question mark to capitalist mode of production. Marx had earlier become a member of an organization, League of Just. देखो, basically Karl Marx was basically born in Germany, and he was a Protestant by birth. His father was a lawyer, and his childhood was comfortable because his father was earning the money that would suffice to the need of his and his other brother and sisters. So Karl Marx, he was leading a decent life up to the childhood and early youth, So he was earlier, his father inducted him in Bonn University, and his father just sent him to Bonn University for getting the higher education. But in Bonn University, he came in touch with the, you can say, unwanted elements of society, and he was there simply wasting his time while doing luxury. He was even got fascinated to drinking and many other sorts of social vices. So his father later transferred him to Berlin University. From Berlin University, he can say, he got, his father was at that time in a mood ki, and suggested him to take a law degree. But Karl Marx didn't having interest into the laws, rather he started to read philosophy. At that time, Hegel was a German thinker, and he was a very reputed thinker, you know. So in whole Germany, Hegel was a very towering a philosopher with a very towering personality. Hardly did anybody dare to give an ideological challenge to Hegel at that time. But Karl Marx, he just did his post-graduation from Berlin University, so he decided to perform the doctorate, he decided to do his doctorate on Hegel, and he was working for the rejection of Hegel's theory. So initially he tried to take the doctorate degree, and for that he had to organize the interview. So in Berlin University, no professor was ready to give him the degree, doctorate, against Hegel's ideology. So he took this degree and did perform his doctorate from other university, you know. खैर एनीवे, इतनी राम कहानी से हमें मतलब नहीं है. मतलब पहले उसके फादर ने उसको बोन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा, वहाँ वो गलत संगति में पड़ गया, शराब वगैरह पीने लगा, तो उसको फिर ट्रांसफर करके उसने बर्लिन यूनिवर्सिटी में भेजा. तो हीगल उस समय का एक बहुत बड़ा, हीगल से मैं आपको परिचय कराऊंगा, एक बहुत रिप्यूटेड थिंकर था अपने टाइम का. तो हीगल की फिलॉसफी पर उसने पढ़ना शुरू किया. तो उसने हीगल की कुछ बातों से तो इम्प्रेस्ड हुआ, लेकिन हीगल में कुछ ऐसी उसकी फिलॉसफी में थी जिसको कार्ल मार्क्स नापसंद करता था. तो उस व्यू को रिवाइज करना चाहा. तो उस पर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, डॉक्टरेट करने का निर्णय लिया कि मैं पीएचडी, डॉक्टरेट तो जानते ही हैं आप लोग. तो डॉक्टरेट करने के लिए जब उसने रिसर्च करना था, तो हीगल के विचारों को काटना था, उसको रिफ्यूट करना था. तो वहां पर बर्लिन यूनिवर्सिटी में कोई टीचर ने उसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी, मतलब बहुत ज्यादा इनकरेज उसके लिए नहीं किया. सो ही हैड टू एक्सेप्ट दिस. लेकिन फिर भी उसने डॉक्टरेट हीगल के ऊपर नहीं किया, तो फिलोसफी की डिग्री ली. फिलोसफी का डिग्री लेने के बाद बड़ा वो मैवरिक लाइफ उसका रहा. उसके बाद उसने एक जर्नलिज्म ज्वाइन कर लिया जर्मनी में ही. और जर्मनी, वो जो जर्नलिज्म ज्वाइन कर लिया कार्ल मार्क्स, ही ज्वाइंड अ जर्नलिज्म, एंड देन he became an economic columnist in journal. मतलब वो इकोनॉमिक बातों का कॉलमनिस्ट बन गया. So he just started to work as an economic columnist. So it was in this context he started to read the books of economics, and it was in this context he consulted too many books. So he became almost an एक्सपर्ट ऑन इन द इकोनॉमिक मैटर्स. अब वहीं से कार्ल मार्क्स की थियरी बननी शुरू हुई, वहीं से उसको लेबर में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, वहीं से कैपिटल और लेबर के रिलेशंस में उसका इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ.
लेकिन कार्ल मार्क्स इतना ज्यादा, उसके बाद फिर उसने कुछ न्यूज़पेपर्स में कुछ ऐसे रेडिकल आर्टिकल्स लिखे। तो माय स्टूडेंट्स, यू नो द फैक्ट कि दिस पीरियड वाज नॉट द पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी, it was in short you can say in Germany and many other regions there was some sort of autocracy, you know, and there was the monarchy, and somewhere particularly in Germany there was the tradition of an autocratic monarch. तो कार्ल मार्क्स को वहां पर घास नहीं डाला गया, और कार्ल मार्क्स पैदा हुआ था 1818 में, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 1818 में पैदा हुआ था। तो कार्ल मार्क्स को मतलब उसने जो 2-3 ऐसे रेडिकल आर्टिकल्स लिख दिए इकोनॉमिक कॉलमनिस्ट होने के नाते, कि वहां का जो जर्मन अथॉरिटी थे उसको उसने निकाल बाहर कर दिया, मतलब एक्सपेल कर दिया उसको, मतलब एक तरह से एक्स्ट्राडाइट, मतलब उसको वहां से एक तरह से कहो तो डिपोर्ट कर दिया, तो वहां से हटा दिया उसको। तो अब वहां से गया तो बहुत समय तक वो पेरिस गया, फिर पेरिस में उसने कुछ ऐसा काम किया कि पेरिस से भी निकाला हो गया उसको, तो अंत में लंदन गया। लंदन सोसाइटी जो थी वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट सोसाइटी थी, तो लंदन में उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं हुआ, तो ही स्पेंट अ लॉन्ग टाइम इन लंदन यू कैन से, एंड इट वाज इन लंदन यू कैन से कि ही बिकेम अ voracious रीडर and he started to consult a book in the different libraries. Man, it is a well-known proverb about Karl Marx कि was almost a bookworm, जिसको आप कहते हो किताबी कीड़ा, वो एक तरह से किताबी कीड़ा था। There is a story कि when he used to move to London's library, so in morning when librarian was opening the library, so he entered into library in 8 o'clock in morning, when 8 a.m. And then in 8 p.m. This is the closing time for library. So he was so much engrossed into reading. In the last, librarian used to tap his shoulder through his hand. Ki, sir, please stand up. Now time is over. And then Karl Marx came to realize that कि time is over. तो इतना वो voracious reader था, बुक वॉर्म था, किताब की दुनिया में इतना मस्त हो जाता था, उसको अपने शरीर का ज्ञान भी नहीं था। कई बार बिना खाए पिए वो कई दिनों तक पढ़ता रहता था, इस तरह के वो थिंकर था। And he came in touch with a British industrialist. He was from industrialist family. You might have heard about Engels, you know. So he was Engels. He was from the same British family, and it was Engels who impressed Karl Marx too much. And it was in touch with Engels he developed the particular interest into the working class problem. Engels was himself a scholar, and he composed a text. He was coming from an industrialist family, but he was a humanist in his approach. So he was having the genuine feeling for workers, Engels. So Engels at that time composed a text, The Condition of Working Class at London, in the condition of working class in Britain. So Karl Marx read this book, so he was widely impressed with this book. And then a friendship, you can say, developed between Karl Marx and Engels, who remained till the last of the life, and they became the very blossom friend to each other. तो कार्ल मार्क्स के साथ वहीं से एंजल्स जुड़ता है। अब 1848 में जब पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन का ईयर है, तो कार्ल मार्क्स भी उसमें पेरिस में था एंजल्स के साथ। So it was here you can say he published, then he came to London also. So he published his famous Communist Manifesto in 1848. And I have just mentioned about the Communist Manifesto even in studies class. He gave a slogan, the workers of the world unite. You are nothing to lose, but simply the chains of sorrow. मतलब उसने वहां पर एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, मनो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की। तो फिर उसके बाद फिर कार्ल मार्क्स की बहुत सारी थियरीज आती है। मुझे पहले उसके थियरीज के बारे में बताने दीजिए, फिर उसके बाद उसके एंड के बारे में बताऊंगा। अब कार्ल मार्क्स देखो कितने सारे थियरीज देगा और किस तरह से उसकी व्याख्या करेगा। अब देखो, कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट मॉडल, उसने कैपिटलिस्ट मॉडल को बड़ा ही इनह्यूमन मॉडल माना। तो पहली जो थियरी कार्ल मार्क्स ने दी है, तो मैं आपको बताता हूं, कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट मॉडल।
अब you people have to be slightly mentally alert because now I am going to deal with Marxist theory, and theory part is always complex, but have patience and have confidence in me. I will simplify the things for you people and you people will well understand. अब मैं सारे थियरी पढ़ाने के बाद आपसे एक बार पूछ लूंगा कि आप क्लियर हुए या नहीं, और मेरा विश्वास है कि आप क्लियर हो जाओगे। तो इसमें जो कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट मॉडल है उसमें एक है कार्ल मार्क्स का, तो वो कहते हैं द थियरी ऑफ सेल्फ एलियनेशन। थियरी ऑफ सेल्फ एलियनेशन। अब ये थियरी ऑफ सेल्फ एलियनेशन क्या है? तो कार्ल मार्क्स ने एक बड़ा दिलचस्प बात कही है, बी मेंटली अलर्ट। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कि व्हाट मेक्स अ डिफरेंस ऑफ मैन फ्रॉम द एनिमल, if someone is going to ask you कि what makes a man different from an animal, so the normal reply कि it is rationalism, because man is rational but animal is not. Karl Marx undermines this statement कि this is another thing, but actually the thing which makes a man different from animal, the most important thing is a man's capacity, or you can say a human being's capacity to work. ह्यूमन बींग्स कैपेसिटी टू वर्क। कार्ल मार्क्स ने कहा कि मानव को पशु से अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज रैशनलिज्म नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है मानव के कार्य करने की क्षमता। तो कहोगे भाई मानव के कार्य करने की क्षमता क्यों आप कह रहे हैं? एनिमल इज हैविंग द लार्जर कैपेसिटी टू वर्क बिकॉज एनिमल इज हैविंग द मोर स्ट्रेंथ, पावर, एंड इट वाज मोर, you can say resistance, the more you can say capacity to work। तो आप मैन क्यों कह रहे हैं? डिफरेंस है कार्ल मार्क्स के अनुसार कि एनिमल नेवर enjoys doing work, but man always enjoys doing work, and the man is taking the creative joy from the work. Animal cannot take the creative joy from the work। मतलब कार्ल मार्क्स का कहना था कि जब मानव वर्क करता है तो उसको सृजनात्मक सुख प्राप्त होता है। सृजनात्मक सुख उसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिव जॉय। मतलब आप जब काम करते हो, अब देखो मैं जो बोल रहा हूं एक कैमरे के सामने बोल रहा हूं, आप लोग बैठे हुए विजुअलाइज कर रहा हूं कि आप लोग बैठे हुए मेरी बातों को गंभीरता से सुन रहे हो, तो मेरे लिए तो एक टॉर्चरस है, और आप भी सुन रहे हो, आपको भी एक एक चीज पॉइंट समझना पड़ रहा है। कभी भावना का क्वेश्चन आता है, कभी पवित्रा का क्वेश्चन आता है, कभी गौरव का क्वेश्चन आता है। आई एम एंटरटेनिंग द क्वेश्चन, लेकिन आप लोग भी जहां जहां बैठे हो आप लोगों के दिमाग बहुत बल देना पड़ रहा है बातों को समझने के लिए। लेकिन हम क्यों फिर भी हम अगर घंटों आपके साथ इस इंटेंसिटी में बात करते हैं, तो इसकी वजह यह नहीं है सिर्फ कि मैं अपना ड्यूटी समझ के काम करता हूं, बल्कि मैं इंजॉय करता हूं कि मेरा स्टूडेंट समझ रहा है, उससे हमको क्रिएटिव जॉय मिलता है। जो मैं कर रहा हूं उसका रिटर्न हमें मिलता है किसके रूप में? तो पैसे के रूप में और गौरव के रूप में, और ये दोनों और रेस्पेक्टिविटी के रूप में। तो इससे हमें क्रिएटिव जॉय मिलता है। और तुम पढ़ रहे हो, कल को क्वालिफाई करके तुम आईएएस बनोगे, और पूरे अपने समाज में, अपने सोसाइटी में जब तुम्हारी इज्जत में चार चांद लगेगी और तुमको अपने मन मुताबिक जॉब मिलेगा जिसमें तुम फ्री होकर अपने लाइफ में काम कर सकोगे, तो ये सोच सोच कर जो तुम कर रहे हो तुमको क्रिएटिव जॉय मिल रहा है। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि यही क्रिएटिव जॉय है जो एनिमल्स को, मैन को एनिमल से अलग करता है। कि कभी आपने नहीं देखा होगा कोई बैल अपने कंधे पर जुआठा लेकर मुस्कुराते हुए जा रहा है, मतलब ox is never smiling while taking the ox bar on its shoulder because it is not enjoying work। वो क्यों करता है वर्क? तो डर से करता है या प्रलोभन से करता है, मतलब वो डर से करता है, डंडे के बल पर करता है। मानव स्वयं पेन लेता है किसके लिए? तो क्रिएटिव जॉय के लिए। लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना है कि अगर आप वर्क आप करते हो लेकिन उसका बेनिफिट कोई और ले जाता है और आपको उसका बेनिफिट नहीं होने देता है, मीन्स यू आर डूइंग द वर्क बट बेनिफिट इज बीइंग रिप्ड बाय सम अदर पर्सन एंड दिस बेनिफिट डज नॉट एक्रू टू यू, तो देन यू विल डेवलप अ सेंस ऑफ एलियनेशन, अ सेंस ऑफ एलियनेशन। मतलब आप में तब
उसको हिंदी में अ सेंस ऑफ सेल्फ एलिनेशन, अ सेंस ऑफ सेल्फ एलिनेशन क्या होता है? तो हिंदी में उसको बोलते हैं आत्मालोप, माने आत्मलोप की समस्या। अब वो क्या होती है? तो आप काम कर रहे हो लेकिन उसका फल कोई और ले जा रहा है, तो आपको अपने काम से और लगाव हो जाएगा और तब आप एक मानव नहीं रह जाओगे। आप में वो रचनात्मक सुख नहीं, लगातार उस रचनात्मक सुख से वंचित होने का ना पशु तुल्य हो जाओगे। तो अब एक दो स्टोरी अगर आपने पढ़ा होगा, अगर इंग्लिश में आपने मैक्सिम गोर्की की मदर पढ़ी होगी, इवान तुर्गनेव की अगर फादर एंड सन्स पढ़ी होगी, या हिंदी में अगर आपने प्रेमचंद की कफन कहानी पढ़ी होगी, या प्रेमचंद की पूस की रात कहानी पढ़ी होगी, तो मैं आपको सेल्फ एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिफाइन कर सकता हूं। तो अब मैंने 4 रचनाओं का नाम बताया, 2 इंग्लिश, मैक्सिम गोर्की का मदर और इवान तुर्गनेव का फादर एंड सन्स, एंड हिंदी में प्रेमचंद की पूस की रात कहानी और कफन कहानी। तो प्लीज इन्फॉर्म मी कि इसमें से कुछ भी पढ़ा हुआ किसी का है? बी फास्ट। मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। क्या? कई ने पढ़े हैं, कई ने नहीं पढ़े। ओके, तो क्या है कि अच्छा छोड़िए, आप रचना को भी छोड़िए, आपके गांव मोहल्ले या आपके समाज में, आप जिस मोहल्ले में टाउन में रहते हो उस समाज में आप देखते हो, अब एक इमेजिन करो, जस्ट यू हैव टू यू कैन से इमेजिन अ सिचुएशन। अब देखते हो देयर इज अ पुअर फैमिली एंड वाइफ इज sick, even there are so many kids in the family and the different members of the family are at the point of starvation. They are not even, you can say, getting the 2 meals a day, and the head of the family is the worker. So worker is working in a factory and whatever salary he is drawing, so in the evening or in the night he was taking the heavy drinks, and while taking the country wine he is reaching home and started to beating badly his wife and his hungry kids. So then you are just observing from your window and these people are crying. So you develop and you suddenly felt a strong sense of sympathy for the member of this poor family. But he is giving curse to this man कि this guy should die. He is not a human being. He is just like a Satan. He is just like a demon. He is just like a dragon. मतलब आप कहते हो कि भाई मजदूर जो अपने घर से जो भी कमाया उसने खुद शराब पी ली है, देशी शराब, और घर पर आके बच्ची बीबी को मार रहा है, उसको दिन भर भूखे हैं, उन पैसे से उनका कम से कम भोजन तो चल जाता पूरे महीने में, और वो भी नहीं कर रहा है। ये पागल, ये इंसान, ये तो राक्षस इंसान है, नहीं ऐसे को तो मर जाना चाहिए। प्रेमचंद ने कहा नहीं, वो सेल्फ एलिनेशन का शिकार है, सेल्फ एलिनेशन का शिकार है, क्योंकि वो लगातार जो करता रहा उसका लाभ कोई और ले जाता रहा। और उसमें कार्ल मार्क्स का कहना है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी का ये बहुत बड़ा फीचर है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चूंकि जो वर्कर्स काम करते हैं उसका फायदा केवल कैपिटलिस्ट ले जाते हैं, तो वर्कर्स एक सेल्फ एलिनेशन के शिकार हो जाते हैं। वो लगातार जो उनसे डिप्राइव होते रहते हैं तो उनमें एक सेल्फ एलियनेशन आ जाता है, और उसके लिए सोसाइटी इज अकाउंटेबल, वर्कर्स आर देमसेल्व्स नॉट अकाउंटेबल। ये नेचुरली हो जाता है, और वो वास्तव में एक तरह से एनिमल हो जाते हैं। उनको एनिमल बनाने में सोसाइटी की भूमिका है, ये कार्ल मार्क्स का कहना है। एंड कार्ल मार्क्स बिलीव दैट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर सफरिंग फ्रॉम द सेम सेंस ऑफ एलियनेशन। देन ही गिव्स सम सॉल्यूशन टू इट। उसने इसका एक समाधान भी बताया
कि व्हाट इज द सोल्यूशन देन? सोल्यूशन इज कि द वर्कर्स शुड डेवलप अ सेंस ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस अमंग देमसेल्व्स। अगर वर्कर्स अपने में वर्गीय चेतना पैदा कर लें एंड दे ट्राई टू लिंक हिज पर्सनल पेन टू द पेन ऑफ हिज other brethren, other workers, so there would be a development of class consciousness, and then they will be relieved from this state of self alienation, and then they will be ready for a revolution. मतलब वह अगर वर्गीय चेतना पैदा कर ले तो वह ये सेल्फ एलिनेशन के कंडीशन से मुक्त हो जाएंगे और फिर वो रेवोल्यूशन के लिए तैयार हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स का मानना है। तो ये बेसिकली कार्ल मार्क्स की थियरी है। मैं स्टूडेंट्स थियरी को आप केवल थियरी के रूप में जानो और थोड़ा सा क्लू दो। यस, आर यू क्लियर? बी फास्ट। यस। क्लियर? अब देखो, सेकेंड वन है कि क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। यू नो, क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ कैपिटलिज्म कौन है? एडम स्मिथ को माना जाता है, और एडम स्मिथ की थियरी को इसने रिजेक्ट किया है। चलिए मैं आपको एडम स्मिथ की थियरी का रिजेक्शन बताता हूं, क्या क्या है इसका। रिजेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लेसेज फेयर, फ्री मार्केट। तो इसने रिजेक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेसेज फेयर, इसने लेसेज फेयर की थियरी को रिजेक्ट किया है। एडम स्मिथ प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ फ्री मार्केट, इट हैड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। उसका जो फ्री मार्केट की थियरी है उसके एस्पेक्ट क्या है? तो वन, द कमोडिटी मार्केट ऑपरेट्स बाय इट्स ओन इंटरनल लॉज, द लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब ये आपको याद है एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि जो मार्केट है उसका खुद का डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन में आप इंटरवेन मत करिए। वो डिसिप्लिन क्या है? तो डिसिप्लिन है डिमांड एंड सप्लाई। हायर द डिमांड हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस। सो लेट द मार्केट फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन इंटरनल लॉज। दिस इज द थियरी ऑफ एडम स्मिथ। सेकेंड वन, there maintain a natural equilibrium in the interest among the producer, the consumer and the workers. Whenever I have taught you Adam Smith, I have just made this point clear कि Adam Smith का मानना है कि प्रत्येक प्रोडक्शन में तीन स्टेक होल्डर्स है, एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है और एक वर्कर है। लेकिन तीनों का जो इंटरेस्ट है वो नेचुरली इनके बीच इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन है, क्योंकि प्रोड्यूसर अगर ज्यादा प्रोडक्ट का पैसा चार्ज करेगा तो कंज्यूमर्स नहीं खरीदेगा। तो प्रोड्यूसर्स, इस बात से प्रोड्यूसर्स पर लिमिटेशंस है कंज्यूमर्स का दबाव, बिकॉज कंज्यूमर्स वुड परचेज द प्रोडक्ट इफ द प्रोडक्ट वुड बी, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी रैशनल। बट ऑन द अदर हैंड, इफ कंज्यूमर्स वुड जस्ट एक्सपेक्ट too much reduction in the cost which is not financially viable for the capitalist, so capitalist would refuse to sell the product and close the production. So for that fear, you can say the consumers could not expect the much reduction in the cost. So there is the equilibrium in the interest of the consumers and the capitalist. मतलब capitalist और consumer के interest में natural संतुलन है। उसी प्रकार उसने कहा कि इसी प्रकार का जो नेचुरल संतुलन है वर्कर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के इंटरेस्ट में है, क्योंकि अगर वर्कर्स को इंडस्ट्रियलिस्ट उनका उचित प्राइस नहीं देता है तो फिर वर्कर्स काम करने से मना कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्कर्स भी ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट उनको इंप्लॉय करने से मना कर सकते हैं और दूसरे वर्कर्स को इंप्लॉय कर सकते हैं। इन दोनों के ऊपर भी एक दूसरे के इंटरेस्ट का बैलेंस है। ये कार्ल मार्क्स का कहना था, सॉरी ये एडम स्मिथ का कहना था, नॉट कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स चैलेंज द एबव एजम्पशंस एंड एम्फसाइज्ड, ये पूछते हो कि कार्ल मार्क्स चैलेंज द एबव एजम्पशंस एंड एम्फसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। अब कार्ल मार्क्स का आर्गुमेंट्स क्या है? देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड द लेबर्स,
यानी वर्कर्स, बिकॉज while the labor struggle for bread, the capitalist you can say struggle for profit. So it is obvious that the bargaining power of the capitalist is much more than that of the laborers, and they force the laborers to work for low wages. मतलब इसका कहना है कि भाई देखो, अब किस इक्विलिब्रियम की बात करते हो? इक्विलिब्रियम की बात तब हो जब लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अरे कैपिटलिस्ट प्रॉफिट के लिए जंग करते हैं, तो दे आर फाइटिंग फॉर प्रॉफिट, तो दे कैन सैक्रिफाइस इवन अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। वो अगर जरूर समझेंगे तो अपने पार्ट ऑफ प्रॉफिट को सैक्रिफाइस कर देंगे। लेकिन वर्कर्स तो ब्रेड के लिए संघर्ष करता है, वो उसका बार्गेनिंग पोजीशन कैपिटलिस्ट के बार्गेनिंग पोजीशन के बराबर कैसे होगा? और फिर उसने कहा कि जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था, सॉरी एडम स्मिथ ने कहा था कि अगर कैपिटलिस्ट अगर वर्कर्स को इंप्लॉय नहीं, अगर वर्कर्स ज्यादा अगर कैपिटलिस्ट वर्कर्स को उनको उचित तनख्वाह नहीं देंगे तो वर्कर्स फिर काम पर आने से मना कर देंगे। लेकिन ये मना तो तब करेंगे जब वर्कर्स के पास रोटी हो, ब्रेड हो। और दूसरी बात यह भी है कि एक क्रिटिक ने बड़ी अच्छी बात कही है कि एडम स्मिथ डाइड इन 1792 एंड कार्ल मार्क्स वाज बोर्न इन 1818। तो 1792 में एडम स्मिथ का डेथ हो गया, तो वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा ही नहीं। उसने देखा ही नहीं जब एक मशीन बनेगा तो हजारों लेबर को रिप्लेस कर देगा, और जिसमें मशीन आ जाएगा इंडस्ट्रीज के पास तो उनका बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि जो लेबर है वो अधिक से अधिक लेबर की छटनी करके कम से कम लेबर से काम करवा सकता है। इस बात को तो एडम स्मिथ समझ ही नहीं पाया। एक बार आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एक बार ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा था कि इन फ्री ट्रेड इन लेसेज-फेयर, whereas in laissez-faire Adam Smith manifested sunlight, Marx there traced a black shadow। मतलब इसको ऐसे समझिए, उनका ये कहना था कि जिस मुक्त अर्थव्यवस्था के सिद्धांत में, जिसको कहते हो नेचुरल बैलेंस इक्विलिब्रियम, एडम स्मिथ ने जहां सूर्य का प्रकाश देखा था, कार्ल मार्क्स ने वहां पर काली छाया देखी। मैंने काली, उनका कहना था कार्ल मार्क्स का ये बकवास है, एक नेचुरल संतुलन होता ही नहीं है, इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है, एंड मार्केट फ्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट को कैपिटलिस्ट क्लास अपने ढंग से डिस्टॉर्ट करता है। अगर एडम स्मिथ ऐसा मानता है कि देयर विल बी द, यू कैन से, डिमांड एंड सप्लाई, द रूल्स आर वर्किंग फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड दैट विल प्रोवाइड द इंडिपेंडेंस टू ऑल स्टेक होल्डर्स इन द मार्केट, सो दैट इज द रॉन्ग परसेप्शन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कि दिस डज नॉट हैपन। तो इसमें क्या है कि furthermore कार्ल मार्क्स was aware of the negative impact of mechanization। कार्ल मार्क्स मैकेनाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट से वाकिफ था। अकॉर्डिंग टू हिम machines easily replace human labor, so the bargaining power of the workers further decreases, and therefore what Adam Smith calls free market is actually a monopoly based economy of the capitalist। मतलब यही बात मैंने अभी आपको समझाई है। अब थियरी ऑफ वैल्यू एंड सरप्लस वैल्यू। अब ये थियरी ऑफ वैल्यू एंड सरप्लस वैल्यू बहुत सिंपल सा थियरी है। अब तो टाइम लगभग ओवर होने जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। जैसे देखो, इसने कहा कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि कार्ल मार्क्स गिव द थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू व्हिच वाज बेस्ड ऑन द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, कैपिटल and labor play a significant role in production. Labor increases the value of an object by giving shape to it। मतलब इसको आप ऐसे, मैं हिंदी में बता देता हूं, आप समझ जाओगे। जैसे इसका कहना था, कार्ल मार्क्स का कहना था, एडम स्मिथ का, कि ये जो, जैसे कार्ल मार्क्स का कहना था, जैसे कार्ल मार्क्स ने ये थियरी तो वैल्यू और सरप्लस वैल्यू का है, ये एडम स्मिथ का है, मतलब बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का है, लेकिन कार्ल मार्क्स उसको डेवलप किया। उसने कहा कि देखिए ये कच्चा माल है, तो कच्चे माल को में वैल्यू है, लेकिन उसको सरप्लस वैल्यू देता है लेबर। मतलब आप जब, जैसे इसका वैसे कॉस्ट होगा 1 रुपी, लेकिन इसको अगर आप एक पेन का शेप दे दोगे तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी मार्केट में 10 रुपीज। तो अगर इसका 1 रुपी जो इसका ओरिजिनल कॉस्ट है, इसका जो रॉ मटेरियल का, वो उसका वैल्यू है, तो 9 रुपी जो एडिशन उसमें हुआ वो उसका सरप्लस वैल्यू है। सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य उसको बोलते हैं। तो उसने कहा कि लेबर किसी कच्चे माल को, जो रॉ मटेरियल है, उसको सरप्लस वैल्यू देने का काम लेबर करता है, लेकिन जब बाजार में इसकी बिक्री होती है, जब ये बिकता है, तो इसमें 9 रुपीज में पता चला कि 8 रुपीज डकार लेते हैं कैपिटलिस्ट जो प्रोड्यूसर है, और मात्र लेबर को 1 रुपी देते हैं। तो एक तरफ
कैपिटलिस्ट के पास कैपिटल का एक्यूमुलेशन होता है, यानी कैपिटल जमा होता है, वहीं जो लेबर है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्लाइन करता जाता है, क्योंकि उनको उनका उचित मूल्य नहीं मिलता, क्योंकि जितना भी सरप्लस वैल्यू है उसको डकार लेता है कैपिटलिस्ट क्लास. सो दैट इज द वैल्यू एंड सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स ने प्रोपाउंडेड. अब तक जो मैंने बताया है, इज इट क्लियर और एनी कंफ्यूजन? देन आई हैव टू गो मूव फर्दर. Please give me the hint. Yes. Okay. Yes. Homework के लिए. Yeah. Homework के लिए. हाँ. Homework. There is one question. Write one question for homework. Question: early socialists in Europe raised the question of ugly impact of industrialization but they failed to bring the solution. Comment. Failed to bring its solution. Comment. That's all. Early socialists in Europe raised the question of ugly impact of industrialization on workers. Sorry, इसमें लिंक कर दो. Industrialization on workers, but they failed to bring its solution. Comment. 150 words. 150 words. My students, tomorrow you people have to go through the whole matter, and tomorrow I will finish Marxism and its impact on Europe. Critical analysis I have to make, because यहाँ थियरी है 2-3, तो अभी कॉम्प्लेक्स थियरी है जो मुझे समझाना है, कल हो जाएगा ये. So tomorrow I will finish it. विनय पूछ रहे हैं, कार्ल मार्क्स can we say father of socialism? Not father of socialism, father of Marxism, because socialism had appeared much before Karl Marx. So you cannot call Karl Marx as the father of socialism. Socialism और Marxism का मैंने फर्क बताया ना, कि सोशलिज्म एक लार्जर टर्म है और मार्क्सिज्म उसका सिर्फ पार्ट है. अदर देन जो नॉन मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट भी तो है, तो नॉन मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट को आप कैसे कहोगे कि कार्ल मार्क्स उसका फादर है? सो माय स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू टुमारो. टाइम इज ओवर, प्लीज. थैंक यू.